حضرت ناظرین کرام، الیکشن کا کچھ ہنگام شروع ہو گیا جی. پتہ نہیں چلتا کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، کیا ہونے والا ہے. بہت سی خبریں آ رہی ہیں ملک سے اندر سے، ملک سے باہر سے بھی، افواہیں بھی پھیلتی ہیں. آج تک یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. یعنی یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہرحال الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو چکی ہے. سپریم کورٹ بڑے کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے. مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ بلے کا نشان جو تھا وہ وجہ ایک نزاع بنا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو انتخابات، انٹرنل انتخابات ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اس لیے ہم بلے کا نشان نہیں دے سکتے. پشاور ہائی کورٹ نے چٹکی بجاتے ہی اس کو ختم کر دیا. اس پر اعتراض کیا گیا، شہباز شریف نے بھی کیا، دوسرے لوگوں نے بھی کیا. کل بھی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی. اعتراض تو ہوا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے ایک ہی چند منٹ میں یہ فیصلہ کر دیا، اور یہ کہ ایک صوبے کی عدالت کے آپ پورے ملک کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ہاں کر تو سکتی ہے، وہ تو ہوا کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس فیصلے کے نتیجے کے طور پر آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو رشتہ داریاں ہیں، رشتہ داریاں پورے ملک میں ججوں کی، سیاستدانوں کے ساتھ، سیاستدانوں کی، جرنیلوں کے ساتھ، سب کی آپس میں رشتہ داریاں موجود ہیں. لیکن اعتراض تو اٹھ گیا نا جی. اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے وہیں پشاور ہائی کورٹ کے شاید ڈویژن بینچ کے سامنے اپیل دائر کر دی ہے. وہ ایک فیصلہ آنا ہے، اور تحریک انصاف یہی سمجھتی ہے کہ جب تک اسے بلے کا نشان نہیں ملتا، جب تک اس کی پارٹی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک انتخابات میں انہیں ایک جسے فیئر پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں ملے گا جی. ٹھیک بات ہے، غلط بات نہیں ہے. دوسری طرف سے صورتحال اس طرح نظر آ رہی ہے، نقشہ ایسا دکھائی دیتا ہے، تمام پارٹیاں اپنی پارٹی کے ٹکٹ بھی فائنل کر رہی ہے. آج بہت سے جو ہے وہ فائنل بھی ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن نے اعتراضات ختم بھی کر دیے ہیں، ایک دو قبول بھی کر دیے ہیں. ہمامہ شروع ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، اس کے ریجیکٹ ہو گئے، اس کے ایکسیپٹ ہو گئے، اس کے ریجیکٹ ہو گئے، اس کے ایکسیپٹ ہو رہے، اس طرح چل رہا ہے. خود پی ٹی آئی چیئرمین کے لاہور میں سے ریجیکٹ ہو گئے اس بات سے کہ ان کے جو کاغذات ہے، اس بات پہ نہیں کہ وہ نااہل کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس بات پر کہ ان کے کاغذات پہ جو دستخط ہیں وہ کسی اور حلقے کے آدمی نے کیے ہیں. تائید کنندہ بھی کسی اور حلقے کا ہے، اصولی طور پہ ایسا ہوا نہیں کرتا. اور باقی حلقوں کی کیا صورتحال بنتی ہے، کیا ایک پوری ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ پوری قوم مقمصے کا ابھی تک شکار ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو الیکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہو جانی چاہیے تھی. ادھر آرمی چیف نے ایک بڑی آج واضح بات کی ہے، وہ ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کی کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے پاس کیا نہیں ہے جی. ہر طرح کے بہترین کینو ہیں، بہترین پھل ہیں، بہترین ہماری زراعت ہے، اور بہترین بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کام کریں گے، ریسرچ کریں گے، کسانوں کا پیسہ جائے گا، صوبوں کا پیسہ جائے گا، ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور یقیناً اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ادھر نگران حکمران بھی جو بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ بھئی ہم تو ایک مہینے میں جو کچھ ہو سکا کر کے چلے جائیں گے، پھر آنے والے جانے ان کا کام جانے. ان کی باتوں سے بھی لگتا ہے کہ وہ ایک بڑا ایجنڈا ہے جس کو وہ درآمد کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ ایک تجکن کے ساتھ لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ کام کرو، کام کرو، یہ نہ سمجھو کہ ہم جا رہے ہیں، تاکہ تم سوچ سمجھ کے کام کر سکو اور بات کو آگے پھیلا سکو. اس کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ تو جانے والے نہیں ہیں. وہ جانے والے نہیں تو اس کا مطلب الیکشن ہونے والے نہیں ہیں. تو اس طرح طرح کی افواہیں ہیں، کبھی کوئی آرمی کے حوالے سے، کبھی کوئی عدالتوں کے حوالے سے، کبھی عدالتیں کہہ دیتی ہیں. کیا حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشن ہو؟ کیوں وہ اس طرح کے بے تحاشا سوالات جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور آج اس پہ گفتگو کریں گے کہ کیا یہ مقبضے کی سی صورتحال، تذبذب کی صورتحال جو ہے یہ کیا ہے، یہ قوم کو کہاں لے کے جائے گی. ایک کشمکش ہے جو موجود ہے، ہونی چاہیے. ڈیوائڈ جو بڑی پیدا ہو گئی ہے قوم میں وہ خطرناک ہے. دنیا کی کسی قوم میں بھی اس طرح کی ڈیوائڈ پیدا ہو، پولرائزیشن اور بات ہوتی ہے، قوم کا بٹ جانا، ووٹوں کا تقسیم ہو جانا دو گروپوں میں اور بات ہوتی ہے، لیکن اس طرح تقسیم ہو جانا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے، یہ دوسری بات ہوا کرتی ہے. وہ ایک اور مسئلہ ہے. یہاں تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اچھا جی انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو کیا اس کے بعد ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ملک جمہوریت پہ چل پڑے گا، جمہوریت پہ نہیں چل پڑے گا تو ٹھیک راستے پہ چل پڑے گا، یا کیا ہوگا. اس طرح کے بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جن پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ
موجود ہیں اس وقت ہمارے بہت ہی سینئر تجزیہ نگار نذیر لغاری صاحب اور پی جے میر صاحب، یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بدر صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ، جو اسپوکس پرسن ہیں بلاول بھٹو صاحب کے، وہ بھی موجود ہیں۔ وہ اپنی کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے ابھی تک اسٹوڈیو میں نہیں پہنچ پائے، لیکن آن لائن ہمارے ساتھ وہ موجود رہیں گے اس وقت تک جب تک وہ یہاں نہیں پہنچ پاتے۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ رفیق رجوانہ صاحب نے شاید شامل ہونا تھا، ابھی تک وہ ان کی لائن مل نہیں پا رہی، کچھ پرابلم پیدا ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اگر وہ شامل نہیں ہوتے تو ان کی جگہ کون شامل ہوتا ہے۔ پہلے پی جے میر صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، محتاط ترین لفظوں میں آپ بتائیں کہ دور بیٹھ کر لندن کے لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے آپ کو؟ میں وہ چیز تو بیان نہیں کر سکتا، بیکاز میں ایسے نہیں ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا افواہیں اڑائے اور یہ اور پرسپشن کریٹ کرے۔ یہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی پاکٹس ہیں کہ جو کہ ہمارے آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، پرسنل ٹارگٹس کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی کے، بحیثیت ایک محب الوطن کے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضرور تنقید ہوتی ہے، آپ کریں اپنے سیاسی حلقوں کے اوپر کریں یا جو سیاسی لیڈران ہیں، لیکن یہ جو ہمارے آرمی کے اوپر ڈائریکٹ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں، یہ میری نظر میں یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی پہ اور جو دشمن عناصر ہے یہ اس کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے سپورٹرز بھی بہت ہیں پاکستان کے، بہت اچھے سپورٹرز ہیں جو کہ بالکل پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن میر صاحب، ایک جسم کے اندر ایک اگر دانت کی درد ہو جاتی ہے یا کمر کی درد ہو جاتی ہے تو پورا جسم وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ تکلیف پہنچا رہے ہیں ہمیں بحیثیت ایز اے نیشن۔ یس، ہماری بڑی فالٹس ہیں، ہمارے فالٹ لائنس ہیں اور پوری دنیا کی ہیں۔ کیا پاکستان انوکھا رہ گیا ملک کے؟ اسی کے اندر یہ پرابلم ہر جگہ ہے پرابلم، لیکن ہم جس طرح ایڈریس کرتے ہیں، اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا زہریلا، ہم ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہے۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی اگر اس کے حق میں پہ چلا جاتا ہے تو دوسرے شور مچاتے ہیں، آپ کے فیور میں جاتا ہے آپ کہتے ہیں واہ 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 یہ تو بہت اچھا ڈیسیژن ہوا۔ تو یہ جو رنجشیں ہم اٹھائی نہیں ہم نے ایک دوسرے کے خلاف، یہ ہمارے سیاسی نظام کو خراب کرنے کی ہے۔ پھر سب کہتے ہیں جمہوریت آنی چاہیے، اور بھائی جمہوریت اگر آنی ہے تو پھر سب کو پلینگ فیلڈ دو نا یار، کیوں تم کرتے ہو کہ وہ نہیں آئے لیکن میں آ جاؤں؟ کیوں؟ وائی؟ آپ کے پاس کوئی ڈیوائن رائٹ ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی فرینچائز ہے کہ آپ ہی آئیں گے؟ اور بھائی سب کو آنے دو، یہ عوام فیصلہ کرے گی، آپ نے نہیں کرنا۔ آپ تو صرف چند لوگ ہو، چند ہزار لوگ ہو، آپ یہ تو پورے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے اس کا۔ تو یہ جو ہم نے اپنے رویے میں سب یہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک بات ہے، میں ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ جی نذیر لغاری صاحب، جب میں نے جان بوجھ کے پہلے پی جے میر صاحب سے بات کی تھی کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی کیا فضا ہے، دیکھیے ورلڈ بینک، راحت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ملک کے بڑے اچھے اکانومسٹ ہیں اور عام طور پہ وہ بات کرتے ہیں، پارٹیزن نہیں کرتے، بڑی پروفیشنل بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی گورننس اچھی نہیں ہے، پاکستان کی فلاں چیزوں میں ریفارم ہونی چاہیے، پاکستان کی معیشت اپنے ہاتھ سے بیٹھ وغیرہ وغیرہ ساری نیگیٹو باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ورلڈ بینک ہم سے 70 سال سے ڈیل کر رہا ہے، ہمیں پیسے بھی دے رہا ہے، ہمارے منصوبے بھی بنا رہا ہے، ہمیں لے کے آگے ہی چل رہا ہے، اسے 70 سال کے بعد آج ہی یہ بات یاد آئی ہے۔ یہ اچانک ہمارے خلاف اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیوں شروع ہو گیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں فضا میں، اور وہ بھی الیکشن کے دنوں میں، یہ ہمارے لیے آپ کی حب الوطنی کے نام سے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بہت سے سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں، کیا یہ ریلیونٹ ہے ہمارے لیے؟ کہ ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، میرے خیال میں ہمیں غور و خوض کے بعد اس پر بات کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے جب یہ طے کر رہا تھا کہ ہر حالت میں پاکستان کے 3 دریائے انڈیا کے حوالے کرنے ہیں، یہ طے کر چکا تھا۔ ورلڈ بینک نے طے کیا سب سے پہلے 1949 میں، اس سے پہلے ورلڈ بینک کے ہی اشارے پر نہرو نے پانی بند کیا پاکستان کا، ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ اور 48 میں پانی بند ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں اس سال قحط پڑا تھا، بدترین قحط پڑا تھا، اور یہ پاکستان بننے کے 1-1.5 سال کے بعد پاکستان کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ورلڈ بینک آیا سامنے اور یہ کہا
इंडिया ने भी ये मौक़िफ़ रखा और वर्ल्ड बैंक ने भी, पाकिस्तान ये तस्लीम करे कि फिरोजपुर हेडवर्क्स पर इंडिया का राइट है, फिर पहली बात ये तस्लीम करे, तो पाकिस्तान कैसे तस्लीम कर सकता था? फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने वाला सेक्रेटरी ऑफ पाशी और पाकिस्तान का और इंडियन सेक्रेटरी ऑफ पाशी दोनों क्लास फेलो थे, और उसने लिख कर दे दिया कि जनाब इंडिया का राइट है। फिर अब अगला कदम वर्ल्ड बैंक ने उठाया कि पाकिस्तान अपने 3 दरिया बेच दे। यूजीन था प्रेसिडेंट 1949 में, 1949 से लेकर 1962 तक वो कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान अपने 3 दरिया बेच दे। उसने लियाकत अली खान ने से कहा, लियाकत अली खान ने इनकार किया, नाज़मुद्दीन से कहा, नाज़मुद्दीन ने इनकार किया, बोगरा से कहा, बोगरा ने इनकार किया, बोगरा के बाद जो चौधरी मोहम्मद अली से कहा, चौधरी मोहम्मद ने इनकार किया। उसके बाद जितने वज़राए आज़म रहते सोहरावर्दी से कहा गया, अपना यहाँ हमारे जो एक और वज़ीर आज़म बने फिरोज खान नून चुंदरीगर बने थे, उन्होंने इनकार किया और फिरोज खान नून ने इनकार कर दिया। फिर हर एक जरी बहादुर ने कहा कि जनाब हाँ ठीक है, मैं दरिया बेचूंगा। फिर मुल्क में मार्शल लॉ लगा, फिर दरिया बेचे गए, और मार्शल लॉ जब लगा तो वर्ल्ड बैंक का ये हिदायत था कि दरिया बेचे जाएं, और अमरीकी वजीर खारजा, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, जॉन फोस्टर डुलास, उसका सगा भाई CIA का हेड एलन फोस्टर डुलास, ये दोनों के दोनों कराची में अमरीकी सफारत खाने में बैठे थे, यहाँ से बराबर में स्टेट गेस्ट हाउस, देखें ये आपकी देखी हुई इमारतें बता रहा हूँ मैं, अपना सजाद मीर साहब 7 वाली इमारत में बैठे हुए थे, जनाब अयूब खान जिनके पास वज़ारत उज़्मा थी, और उसके बाद जो है वो अपने साथियों को साथ लेकर गए और जाकर अमरीकी वजीर खारजा भी साथ थे, CIA का हेड भी साथ था, दोनों सगे भाई थे, और इन्होंने जाकर अपनी निगरानी में टेक ओवर करवाया और सिकंदर मिर्जा को हटाकर उसकी जगह पर जो अयूब खान को प्रेसिडेंट बनाया गया और चीफ मार्शल ऑफिसर भी बनाया गया। ये बाकायदा मार्शल लॉ लगवाना, ये कहाँ से वर्ल्ड बैंक की और अमेरिका की जिम्मेदारी थी कि वो हमारे मुल्क के अंदर ये आकर तय करेंगे कि अब सदर कौन होगा और सदर कौन नहीं होगा। उसके बाद जब बोगरा को हटाया गया था उसके लिए भी यही चल रहा था, और बोगरा को फिजिकली पीटते हुए, बाकायदा पीटते हुए एयरपोर्ट से प्रेसिडेंट हाउस में लाया गया, और इसके अंदर अपना गुलाम मोहम्मद ने उससे इस्तीफा ले लिया। फिर उसके बाद जब ये दरिया हमारे बेच दिए गए और वो बाकायदा वो हो गया एग्रीमेंट, इसका सेंटास मुआहदा हो गया और 3 दरिया दे कर्जों का मामला शुरू हो गया। वर्ल्ड बैंक का क्या काम था कि ये मामला तो नए सिरे से उठाता और मैकनमारा को लेकर लाया गया। मैकनमारा का पूरा दौर एक वर्ल्ड बैंक की तारीख का शाह दौर है। फिर उसके बाद और बहुत से मैं अपना वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बताता हूँ, वो एजेंडे पर काम करते हैं। मीर साहब मैं होता हूँ नहीं होता हूँ, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला पीजे मीर साहब को जिंदगी दे। मुझे ये इलेक्शन भी खतरनाक नजर आते हैं, इनके नतायज भी खतरनाक नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े मुस्तकबिल के बारे में कोई खुदा ना खास्ता मनफी जो चीजें हैं वो ना हो रही हूँ। ठीक हम इस वक्त जिस तरह से क्वेश्चन, जैसे ये पीजे मीर साहब ने कहा, आर्मी चीफ बाकायदा हमने गालम गलोच ब्रिगेड को जिस तरह से हमने काम करते दिखाए, और खुद सिस्टम के अंदर लोग जो बैठे हुए हैं वो जिस तरह से ऐसे लोगों की सहूलतकारी कर रहे हैं कि जो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। मुझे बहुत सी बातें इस तरह से नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं बात आता हूँ, देखें कि हम बहुत ज्यादा खुल के बात भी करें। अली बदर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, और मैं बल्कि आपका मुंतजर था, अल्लाह करे कि आप जल्दी यहाँ पहुँच भी पाएँ। लेकिन मैं जो बात कर रहे हैं, सारे दोस्त हमारी बात कर रहे हैं कि हमने मुल्क की सूरत बड़ी अजीब बना दी है, यहाँ 9 महीने अजीबोगरीब बना दी है, और जाहिर है पाकिस्तान का कोई मुहब्बे वतन शख्स इस बात को इंडोर्स नहीं कर सकता कि हम अपने इदारों के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करें, इस तरह का रवैया इख्तियार करें। नज़ीर लगारी साहब बहुत एक डेमोक्रेट किस्म के आदमी हैं, मुहब्बे वतन आदमी हैं, और वो नेशनलिटीज के इश्यूज पर भी बहुत कंसर्न रहते हैं। पीजे मीर साहब बड़े खुले ज़हन के आदमी हैं, बाहर बैठे हुए दुनिया को देख रहे हैं, वो भी इस बात पर कंसर्न है कि हमें इस बात पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। आपको इलेक्शन पे होता है कैसा दिखाई दे रहा है इस वक्त? खासतौर पर 9 मई के हवाले से हमें सोचना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं माजरत चाहता हूँ
एक जरूरी काम के सिलसिले में मुझे इधर RO के ऑफिस में आना पड़ा, जिस वजह से मैं आपके पास इन पर्सन नहीं आ सका। वो देखिए, ये PJ मीर साहब भी सीनियर आदमी है, नजीब लगारी साहब ने जो बात की है ये तो तारीखी बातें हैं, और तारीख को आप जुटला ही नहीं सकते कि ये सारे मामलात है। 9 मई के हवाले से देखिए, ये तो सारी चीज़ों को आपके सामने ही है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है और उसके अंदर सारे मामलात हुए, जो लोग 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है तो उनको तो रियायत गुंजाइश देनी चाहिए। और इलेक्शन अभी आपने जब अपना इंट्रो कर रहे थे ना, तो उसके अंदर मैं सुन रहा था, आपने बहुत सारे सवालिया निशान उठाए कि पाकिस्तान की सालमियत का और पाकिस्तान के फ्यूचर का, पाकिस्तान की अवाम का, उनके आने वाली जनरेशन का फ्यूचर का मामला है। बस उसकी वजह इस इलेक्शन का साफ शफाफ, फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना बड़ा जरूरी है। बस इस चीज से हम डिटरमिन करेंगे कि हमने अपने मसाइल का हल निकालना है या मजीद मसाइल में उलझना है। बस पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है उसके अंदर इतने ज्यादा चैलेंजेस हैं, हमें इंटरनल चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस है, और हमें अपनी गवर्नेंस के ऊपर, अपनी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, अपने जो है इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। फिर फॉरेन रिलेशन को बेहतर करने की जरूरत है। दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर सिर्फ ये एक इदारे का या एक इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है, ये स्टेट और स्टेट के अंदर रहने वाले तमाम, जिसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, तमाम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि बैठ के पाकिस्तान के लिए एक ग्रैंड एजेंडा सोचें कि हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को लेके किधर जाना है। यहाँ पे अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, हमारे साथ हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स के साथ, लीडरशिप के साथ ज्यादती भी हुई, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, हो गई, छोड़ते हैं, हम उस चीज को लेके आगे नहीं चलते। हम चाहते हैं आइंदा लोगों के साथ ज्यादती ना हो। हम उस चीज की आवाज उठाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निजाम हो जिसके अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो मजरू ना हो, उनको जो है वायलेट ना किया जाए, लोगों को आसानियां पैदा की जाए, सियासत के अंदर भी आसानियां हो। बस जब एक जाती, PJ मीर साहब एक बात कर रहे थे कि हम अपने जाती मुफाद के लिए, हम तो अपने जाती मुफाद से ऊपर ओवर एंड अबव जाके कहते हैं कि ठीक है, जिसको पाकिस्तान की अवाम वोट दे वो जीते और आके हुकूमत कर ले, लेकिन उसके साथ जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस का होना जरूरी है। लेकिन फिर यहाँ पे सवालिया निशान ये भी आ जाता है कि आवाम जिसको वोट दे वो आके करे, लेकिन उसके बाद मुल्क का डिक्लाइन आ जाए, उसमें कम्पिटेंसी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, फिर मुल्क को कहाँ लेके आगे जाएगा, फिर मुल्क का दिवालिया निकलेगा, तो फिर मुल्क ने कहाँ जाना है। तो यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तो ये भी सोचने की जरूरत है कि बैकअप प्लान क्या होना चाहिए। ठीक बात, मैं दोबारा आता हूँ बलोच साहब, आपकी तरफ दोबारा करना कितना जरूरी है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें शामिल हुए, हमारे साथ हुए हैं। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप शामिल हुए बहुत कम छोटे नोटिस पर। हमारे साथ PJ मीर साहब ने यह कहा कि वो लंदन में है, जहाँ अजीब बातें की जा रही हैं पाकिस्तान की फौज और सरबराह के बारे में, जो कि किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। नज़ीर लगारी साहब ने मैंने हवाला दिया कि कल रात हफीज पाशा कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक को अब ख्याल आया है कि हमारी गवर्नेंस बुरी है, खराब है, 70 साल से हमें डील कर रहा है। और हफीज पाशा बहुत एक किस्म के बड़े, यानी कि फेयर किस्म के हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल से आपसे डील कर रहा है, हमसे मामला कर रहा है। तो नज़ीर लगारी साहब ने सारा किस्सा सुनाया, किस तरह हमारे 3 दरियाओं के हवाले से वर्ल्ड बैंक आगे आया, उससे बात की और देखे हम जहाँ तक पहुँचे, और फिर गैर मुल्की वज़ीर खजाना हमारे मुल्क में आना शुरू हुए और कैसे फैसला हुआ, इलेक्टेड लोगों ने इसको कबूल नहीं किया, और फिर मार्शल, इस सारी कहानी उन्होंने सुनाई। आप क्या करें कि ये कैसी फजा पैदा हो गई है? 9 मई के हवाले से बात हो रही थी, अभी अली बदर साहब उस हवाले से जिक्र कर रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि फिर इंतखाबात हों, लेकिन ये मामला ऐसे हैं कि जिसमें मुल्क की फजा जो खराब कर दी हुई है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो है कि 9 मई सियासी अमल नहीं था, इस पे मेरी कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मेरी भी दो राय। जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, तो एक पार्टी जिसके पास कराची में एक सीट थी, वो 14 कौमी असेंबली की सीटें कैसे लेगी, ये सवाल भी तारीख में मौजूद है। इसका भी जवाब वो दोस्त हैं जो तनकीद करते हैं। जहाँ तक ये सवाल रहा कि
ये क्या गुफ्तगू हो रही है फौज के बारे में। मैं फौज का नकाद हूँ। फौज को पाकिस्तान के आइन में जो इख्तियारात दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फौज मेरी कौमी फौज है, वो मेरी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। और ये हकीकत है, ये फिक्रा जो बोलते हैं ना कि जब हम सो रहे होते हैं और वो जाग रहे होते हैं, तो ये महज लफ्ज़ नहीं है, ये हकीकत है। हिंदुस्तान के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे जो रात को ड्यूटी देते हैं सिपाही, मैंने खोखरा पहाड़ के बॉर्डर पर जाकर देखा जी, ट्रेंचेस में जिस तरह सिपाही ड्यूटी दे रहे थे गर्मियों के मौसम में, बहुत ऐसा है कि हम आप तो वहां चंद घंटे नहीं ठहर सकते। तो मेरा ये कहने का मकसद है मीर साहब कि अब हम उनके उस रोल के तो मुखालिफ हैं जिस रोल में एक पार्टी को एक नशिस्त की बजाय 14 मिल जाए। मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। लेट दी पीपल बी द जज। अवाम को फैसला करने की मुकम्मल सहूलत होनी चाहिए। आज के भी इंतखाबात में, मैं अभी भी एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ, कहा गया बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है। मैंने उनसे कहा कि 800 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, आप जिस जुल्म और ज्यादती की बात कर रहे हैं, मुझे इसकी तफसील से भी आगाह करें कि ये कितने वाकयात ऐसे हैं। अगर ये वाकयात इक्का दुक्का हैं या 10-20 हैं, तो इस 10-20 वाकयात में हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि वाकयात की नोयत क्या है। अगर आप इश्तिहारी हैं और आपका अखबार इश्तिहार हो चुका है, आपको क्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया है, आपको पेश होना चाहिए थाने में, आप पेश नहीं हो रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या रह जाता है कि आपको गिरफ्तार न किया जाए या आपकी गिरफ्तारी के लिए छापा न मारा जाए। अब इस चीज को आप सियासी तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो मुझे अफसोस है। हम खुद थानों में मार खाते रहे हैं, हम खुद जेलों में जाते रहे हैं। मैं तो किले में भी गया हूँ। हमने ये तो नहीं कहा कि हमें जो मार पड़ी या जो किला खाता हमने जो जेलों में गए उससे हम जमहूरियत की साख को पलटा दें और लोगों को उकसाएं कि इस जमहूरियत को ही खत्म कर दो, इस रियासत के साथ ही एक दुश्मनी पैदा कर लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसे लोगों की हमायत करूंगा। मैं सियासत में सियासी लोगों की हमायत करूंगा, मैं वोट की बर्तरी की हमायत करूंगा, मैं पार्लियामेंट की बर्तरी की हमायत करूंगा, और जो भी ये कहता है वो करे। आप देखिए ना, बिलावल वगैरह भी इसका सियासत कर रहे हैं ना, पंजाब में वो आगे। और ये हैरानकुन बात है कि उन्होंने लियारी का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया और वो पंजाब में आ गए। ये है सियासत। ये सियासत तो ठीक है, लेकिन सियासत अगर गाली की करनी है, गलोच की करनी है, लोगों को धमकाने की करनी है, लोगों को वार्निंग देनी है कि हम इस 2024 के नवंबर में तुम्हें सबक सिखा देंगे, तो ये बात फिर चलेगी नहीं। ठीक बात है, बहुत दुरुस्त बातें हुई। हमारे चारों पार्टिसिपेंट ने बड़ी वजाहत के साथ गुफ्तगू की है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं पहले, लेकिन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, आपने देखा पीछे मीर साहब जो बात आपने शुरू की है वो शायद इतनी दूर ले गए। हमारे साथी नज़ीर लगारी साहब ने बहुत पूरी तारीख सुना दी, फिर अली बदर साहब ने बहुत वजाहतें की, और आखिर में आके तो इफ्तिखार अहमद साहब ने किस तरह इंडोर्स किया पूरी सूरत हाल को कि हमारा इलेक्शन के खतरे में है, हमें स्टेट के इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि स्टेट ही एट स्टेक हो जाए। तो अब आप क्या रास्ता क्या तलाश करते हैं हमारे लिए? जो लगारी साहब ने बातें की हैं ये बड़ी गहरी बातें हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि रॉबर्ट मैकनामारा ने जो वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारे लिए जो मुसीबतें डाल गई हैं, आज हम उसका उसको हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम रीप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि हमने पहले अपने घर को भी देखना है कि क्या हमारा घर ठीक है या नहीं है। लेकिन हम बाहर की तनकीदें करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि हमने तो अपने इंटरेस्ट को देखना है। लेकिन वो कौमें मीर साहब कभी तरक्की नहीं करती हैं जो अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त ना कर सके, और हम तनकीद बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आज क्या बात है कि किसी पे तनकीद होती है तो वो अंदर हो जाता है, जब वो पावर में आता है वो अंदर हो जाता है। तो ये जो फिर हम नारे लगाते हैं जमहूरियत के, जमहूरियत के अंदर आप सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, और इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी पे जा रहे हैं, डेमोक्रेसी पे नहीं जा रहे। हम डीमंस बन जाते हैं जब हम पावर में आते हैं। तो ये साइकिल जो है ये बड़ी देर की चल रही है। लगारी साहब ने उसका एग्जाम्पल दिया आपका अयूब खान का। उसके बाद आप देखें कि इसका आपका मतलब कि हमारे यहाँ जमहूर की हुकूमत नहीं है, बलाओं की हुकूमत है। बिल्कुल बिल्कुल, बलाओं ये बलाएं आ जाती हैं। हाँ, और ये बलाएं जो हैं फिर ये ऐसे कंटेमिनेट करती हैं आपके पूरे सिस्टम को कि आप
ہر ادارہ آپ کا پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. ادارہ جب پولیٹیسائز ہوتا ہے آپ کی پرفارمنس نیچے چلی جاتی ہے. پرفارمنس نیچے چلی جاتی ہے, آپ پہ قرض اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, کوئی بھی لیڈر آئے, انکلوڈنگ قائد اعظم, کوئی بھی لیڈر آیا اس نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں خرچا, وہ ٹیکس سے پیسے لیتے ہیں. اور لیکن ہمارا جو امپلیمنٹیشن آف ٹیکسیشن ہے وہ اتنا خراب ہے کہ ہم نے تو اپنا آج تک 70-72 سال ہو گئے, ہم نے ٹیکس اس کو بیس کو براڈ کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میرا ووٹر مار جاتا ہے. میں جب کنونس کرنے جاؤں گا میں تو نہیں ٹیکس بڑھاؤں گا. آپ کے فائن 250-300 روپے کے فائن ہے, اور کس کے ہیں کہ جو کہ لوڈڈ بلٹس آپ کی روڈوں پہ چل رہی ہیں گاڑیاں, یہ لوڈڈ بلٹس ہیں کہ ایک غلطی کے بعد نااہلی کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, یہ بالکل یہ لوگوں کو مار دیتے ہیں, اور فائن کیا 250 روپے 500 روپے 1000 روپے. ہاں ٹھیک بات, میں دوبارہ آتا ہوں اب تک. جی نذیر لغاری صاحب, آپ ہی چھیڑی بات جہاں تک پہنچی ہے, آپ کیا راستہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اپنے پی جے میر صاحب تو کچھ بتا رہے ہیں کہ جو قوم اپنا احتساب خود نہیں کرتی وہ پھنس جاتی ہے مشکلات میں, ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہے. غلطیاں ہم نے کی ہیں, بلنڈرز کی ہیں تاریخ میں, ہم نے ڈکٹیشنز لی ہیں. کون سا کس آپ کو حکیم نے بتایا ہے کہ آپ اپنے گملے بنائیں اور ان کے اندر پنیریا لگائیں؟ کس نے کہا ہے کہ سیاسی گراؤنڈ جو ہے آپ اس کے لیے انکروچمنٹ کرنے کے راستے نکالیں؟ کس نے کہا ہے کہ سارے الیکشن کے عمل کو معطل کر کے ایک لاٹلے کے لیے پورے ملک کو جو ہے یرغمال بنا کر رکھتے ہیں؟ سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ مچائیں, سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو اٹھا کر ایک زبردستی ایک پارٹی میں لے جائیں, سیاسی امیدواروں کو لے کر بڑے بڑے نامی گرامی لوگوں کو لے کر ان کو کہیں کہ جاؤ ایک صوبہ محاذ بناؤ, اور پھر صوبہ محاذ کو بنانے کے بعد اس صوبے محاذ کو جو ہے ایک پارٹی میں جا کر ضم کر دیں. پھر جب بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں تو پھر آپ الیکشن کی چوری کر لیں. یہ سارا کچھ ہم کرتے رہے نا, یہ ہماری غلطیاں ہیں نا, وہ ہمارے گلے پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے نذیر لغاری صاحب, آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ادارے کی غلطیاں ہیں, کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں نا جی, ہم پارلیمنٹیرین کی, ہم میڈیا والوں کی, ہم عوام کی لوگ. ہاں جی جی یقیناً ہیں. اور یہ سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں. سیاستدان اس لیے غلطیاں کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا عمل جاری ہے. سوسائٹی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس کو آگے نہ بڑھنے دیں, راستے رکاوٹ ڈال دیں. ٹھیک ہے بالکل بات. افتخار صاحب یہ کہتے ہیں سوسائٹی آگے نہیں بڑھ رہی, اس کو روکا جا رہا ہے, رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. کیا کوئی حل بتائیے, کیا کریں, کیسے کریں جی؟ سارا ہم مسئلے تو بتا دیتے ہیں, ہر آدمی سچ بول رہا ہے, سب کے پاس سچ ہی سچ ہے اور کچھ نہیں ہے, لیکن راستہ کیا ہے آگے جانے کا؟ مقامی حکومتوں کا انتخاب, 1,00,000-1.25 لاکھ نئی لیڈرشپ کو ایمرج ہونا, اقتدار عوام کے حقیقی نمائندوں کے پاس گلی محلے تحصیل گاؤں میں جانا, یہ ہے حل. نہ تو پھر فوج ان لاکھوں لوگوں کو جیل میں پھینک سکتی ہے, اور نہ ہی سیاسی پارٹیاں ان کے بغیر پھر سیاست کر سکتی ہیں. جو غلطیاں ہیں وہ ہمالیائی غلطیاں ہیں دونوں طرف سے. ان غلطیوں سے بچنا ہے. سیاستدانوں کو سیاسی پارٹیوں کو آرگنائز کرنا ہوگا, سیاسی پارٹیاں بنانی ہوں گی, اور ہم عوام کو بھی جو سارا دن تنقید کرتے رہتے ہیں اور بھی لوگوں کو شاباش دیتے پھرتے ہیں, ہم کو بھی اپنی مرضی کی سیاسی پارٹیوں میں باقاعدہ ممبرشپ لینی ہوگی اور اون کرنا ہوگا. تب بات آگے جائے گی, ورنہ یہ بات اب آگے نہیں جائے گی. معظم دنیا میں جیسے ہوتا ہے. جی ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے ساری باتیں سنی, اب آپ بتائیے گا کہ ہم کیسے, یہ جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اون کرنا پڑے گا ساری صورتحال کو, اور آگے بڑھنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں راستے. کیسے کیا کہیں, کیا پارٹیوں کو کیا کرنا چاہیے اب اس کو؟ یہ اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے جس وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی لاہور میں, اس شہر میں, اور وہ یہ اس وقت ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر اس کنونشن میں بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ بڑا درد دل یہ بھی رکھتے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ دیکھیے بالکل اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے, اپنے آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن, فیوچر لیڈرشپ کے اوپر, ایمرجنگ لیڈرشپ کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر اوور آل اگر ہم دیکھیں وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایجنڈا ہونا چاہیے. اور پاکستان کی گورننس کا پبلک سب سے پہلے جو چیز ٹھیک کرنے والی ہے نا, وی ہیو ٹو ریویو اوور پبلک پالیسی. پبلک پالیسی
आपकी ठीक होगी तो आपका फ्यूचर ठीक होगा। बिकॉज लोगों के प्लान होते हैं 50 साल, 100 साल, 200 साल। हमारा यहाँ पे 5 साल का मंसूबा होता है और उसकी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाद आजाद हुए हैं, और आप देखें उसके अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि आज दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। आप देखें कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट चाइना से बढ़ गई है रेडीमेड गारमेंट की। तो हमें भी अपना होमवर्क करना है, और हमें हर सेक्टर, हर पॉलिसी के ऊपर अपना होमवर्क करना है, और वो जो रिव्यू करना है वो फ्यूचरिस्टिक जो है वो रिव्यू होना चाहिए। बिकॉज उसके अंदर ये नहीं है, बिकॉज हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है, हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, हेल्थ के रिफॉर्म्स पे, एजुकेशन के रिफॉर्म पे, और हमें टेक्नोलॉजी की रिफॉर्म्स के ऊपर काम करने की जरूरत है अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है और ट्रांसफॉर्म करना है। अगर ट्रांजैक्शनल स्टाइल ही चलाना है तो वो तो 70 साल से चल ही रहा है, चलता जाएगा। इसमें हमारे जितने बुजुर्ग हैं हमें उनका तजर्बा चाहिए, उनके तजर्बे से सीखना है। आपकी बात समझ गया कि तजर्बा चाहिए, लेकिन उसके साथ नया खून चाहिए जो आगे ले जाए इस कौम को, और हम आगे बढ़ सकें, अपनी गलतियों से भी सीखें। रानी साहब, इससे अच्छी बातें जो हो रही हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ और हो नहीं सकती। अब हम देखते हैं कि हम किस तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं, और हमारा रास्ता क्या आने वाले दिनों में बन सकता है। एक वक्त हाजिर होते हैं जी। पीजे मीर साहब, बहस तो बहुत फैल गई है, बहुत लंबी है। आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इस वक्त हल क्या तजवीज़ करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नक्शा बनना चाहिए? जो आपने एनालिसिस कर दिया, सारे साथियों ने कर दिया, सब ने अपने अपने अंदाज में, अपने अपने एंगल से पाकिस्तान के मसाइल का सही हल तलाश किया। अब करना क्या चाहिए, कोई रास्ता बताइएगा कोई। सबसे बड़ी पहले जो चीज़ है, आपको डैमेज कंट्रोल करना है। और हम वो कौम है, ये डैमेज कंट्रोल की आपने बहुत अच्छी बात की, हमने बहुत अपना नुकसान किया हुआ है। ठीक बात, बहुत नुकसान। हाँ। अब हमने एक चीज करनी है, देखें ना, आप अपने आप को, हम अपने आप को असेस करें। क्या हम ठीक हो सकते हैं बिजली की चोरी के अंदर? क्या हम ठीक हो सकते हैं होर्डिंग के अंदर? क्या हम ठीक हो सकते हैं स्मगलिंग के अंदर? क्या हम ठीक हो सकते हैं जो आपकी ट्रैफिक है, जो कि जिंदा लोडेड बुलेट्स के साथ जाके लोगों को मार रही है? एक तरीका हो सकता है, और वही मेरी नजर में तरीका नजर आ रहा है। आई एम श्योर कई इससे इत्तेफाक करेंगे, कई नहीं करेंगे। आपके पीछे हमारे जैसे जो ममालिक होते हैं उनको एक मॉनिटर चाहिए होता है। स्पेन आपके पास सबसे अच्छा एक एग्जांपल है। जनरल फ्रैंको ने जब 30 साल हुकूमत की फौज के साथ, तो आज भी आप कह लो कि उसने मोनार्की को तो दे दी, लेकिन आज भी डाइसेंट है नॉर्थ के अंदर, बेस्ट अभी तक भी एक्टिव है। पाकिस्तान के अंदर हमें दहशतगर्दी का एक सामना करना पड़ता है, साथ उसके हिंदुस्तान की प्रोवोकेशन का करना पड़ता है। हमारे पास कश्मीर का एक मसला है, हमारे पास पानी का आने वाला मसला है। वर्ल्ड बैंक तो आपको बता गया है कि 2027-28 के अंदर यू विल बी स्ट्रगलिंग। अच्छा जी, 2047 के अंदर आपकी जो सुई की जो गैस आ रही है ये बिल्कुल डिप्लीट हो जाएगी। आपने लंबा सोचा है कोई? नो। आप सोचते हैं 2 साल 3 साल के इलेक्शन के महदूद तक। अभी भी जो डैमेज कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं, ये मॉनिटर को बिठा दें, वो इंटरफेयर ना करे टिल द टाइम कि काम खराब ना हो। ठीक बात है, ठीक साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक आ गई। नज़ीर लगारी साहब, ये बात तो अनडेमोक्रेटिक गिनी जाएगी, लेकिन इस मुल्क के बहुत से दानिश्वर, मैं एक ने एक बेशुमार लोग जो हैं, पढ़े लिखे भी हैं, डेमोक्रेट भी हैं, वो ये बात करते हैं कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट होती है। सिंगापुर की मिसाल देते हैं, मलेशिया की मिसाल देते हैं, वैसे चीन की भी देते हैं, अरब की भी देते हैं कि डेमोक्रेसी से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मुल्क की सनती तरक्की, मॉडर्नाइजेशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये खुद फिर डेमोक्रेसी को लेकर आती हैं। हमने डेमोक्रेसी के घोड़े को आगे बांधा हुआ है, नतीजे के तौर पर ना डेमोक्रेसी चल रही है, ना मुल्क तरक्की कर रहा है। आप क्या रास्ता बताएंगे? एक मैंने एंगल बयान किया है कि यहां तक लोग पहुंच गए, इस तरह की बातें करने लग गए हैं। आपको सिर्फ इदाराजाती अदम मुदाखलत पर जाना होगा। पार्लियामेंट अपना काम करे, फौज अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, इदारे अपना काम करें, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, सब अपने अपने काम पर जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक करें। ये कहते हैं इसका कोई मॉनिटर हो, ये कहते हैं इसका कोई मॉनिटर हो।
नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मॉनिटर कौन होगा। हाँ, यही तो मसला है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मॉनिटर अगर करना है तो आपको मॉनिटर तो उसको करना होगा ना जिससे आपको आप सब बैठ जाते हैं, कहें जी ठीक है, ये सारे के सारे बैठ गए, अब हम मॉनिटर के लिए शेर को रख रहे हैं कि शायद जो है सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। पहले शेर से कौन किसी को बचाएगा? बात यह है कि मॉनिटर के लिए भी कोई आपका आईनी कानूनी ज़ाब्ता कार होना चाहिए जिसके अंदर से सरे कोई इनहराफ ना हो सके। आइन के अंदर लिखा हुआ है, गारंटी दी गई है कि उसके बाद नहीं लगेगा मार्शल लॉ, उसके बावजूद मार्शल लॉ लगा है। अब क्या कर लेंगे? आर्टिकल 6 कहता है आपके सामने, ये अभी 3 साल 2 साल की बात भी नहीं है, आपके सामने गलत इंटरप्रेट किया गया। आपके सामने आर्टिकल 5 पढ़ा, असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक शख्स ने आर्टिकल 6 लगाने के लिए, ताकि वो जो कासम सूरी साहब जब आर्टिकल 6 को इन्फोर्स कर रहे थे अपना नाम भी नहीं ले रहे थे, नाम ले रहे थे असद कैसर का, और उन्होंने बाकायदा आर्टिकल 6 लगा दिया और कहा कि मैंने ये करारदादे जो तारीख एतमाद इसको मुस्तरद कर दिया। ये कौन होते थे तारीख एतमाद को मुस्तरद करने वाले? ठीक एब्रोगेट किया। जलील रज़ा साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपने बात बहुत अच्छी छेड़ दी और ये ऐसा मौका है कि जब हम इफ्तिखार अहमद साहब से दरख्वास्त करें कि वो बताएं कि ये सारी जो बातें हुई हैं बड़ी बड़ी चुपती हुई बातें हैं, क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं आपको? हम सारी उम्र डेमोक्रेसी के लिए लड़ते रहे हैं, अब डेमोक्रेसी हमें खतरे में नजर आती है और प्रॉब्लम पैदा होते दिखाई देते हैं। सर, फिर मैं अर्ज करूंगा कि असल जो हकीकी जमहूरियत है वो नहीं आने दी जा रही, इसमें सियासी जमातों की भी गलती है। वो इस हकीकी जमहूरियत से डरते हैं, खौफजदा होते हैं, वो समझते हैं कि उनके चीफ मिनिस्टरों की ताकत कम हो जाएगी, वो रास्ते में रुकावट है। अगर वो समझ जाएं तो उनके लिए बेहतर है। अब फ्यूचरिस्टिक मनसूबा बंदी यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इतनी कर दी जाए कि हर गली मोहल्ले तहसील में जमहूरियत हो और दफ्तर हों, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कमेटियां हों, तभी आगे जा सकते हैं। डैमेज कंट्रोल तभी हो सकता है। अगर आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं ऊपर की सतह पे और किसी को मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो वो एक बहुत खतरनाक खेल होगा। हमने मॉनिटर बना के भी देख लिए और मॉनिटर्स ने खुद भी सारा निजाम संभाल के देख लिया, वो नाकाम हो गए। सिर्फ जब तक हम अदारा जाती मदाखलत की जो बात हुई, जब तक हम अदारा जाती मदाखलत को ख़त्म करने का यकीन कामल नहीं कर ले और उसको रोकने के लिए लाखों इंसानों पे मुश्तमिल वो फौज न खड़ी कर दें जमहूरियत की हामियों की, तब तक कोई बेहतरी के इम्कानात नहीं। ये जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बात इस बात पे पहुंची है कि जिसे हम बल्दियाती निज़ाम कहते हैं या शहरी हुकूमत कहते हैं, छोटे लेवल पर हुकूमत कहती है, पावर की तकसीम जो है निचले लेवल तक कहते हैं, जब तक वो नहीं आती हमारे यहाँ मजबूत डेमोक्रेसी, नई क़यादत और मुल्क के मसाइल का हल पैदा नहीं हो सकता। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के मसाइल को हल करना है, आपको गली मोहल्ले तक लोगों को डेवल्यूशन ऑफ पावर लेके जानी है और लोगों को एम्पावर करना है कि हर गली मोहल्ले के अंदर से, हर इलाके के अंदर से लीडरशिप ऊपर के आए। वहाँ पे आप लोकल लीडर्स को भी दें, वकीलों जो है वकीलों की भी, उनकी भी लीडरशिप उभरे, माइनॉरिटीज की भी उभरे, खवातीन की भी उभरे, लेबर्स की भी उभरे। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लीडर्स होना चाहिए जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करे और वो लोगों की खिदमत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत साल तक इसी तरह के मॉडल के ऊपर काम करती रही। और बीबी शहीद के होने के बाद 2008 बीबी शहीद ने तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए जाएं, उन्होंने तो यहाँ तक की बात की। उस चीज को आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और पीपल्स पार्टी का जो अवाम के साथ एक कनेक्टिविटी या राब्ता था उसका फुकदान आ गया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में जो चीजें हम देख रहे हैं और जो वो करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम ग्रास रूट पे जाएंगे और लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि फ्यूचर लीडरशिप। ठीक बात है जी। पीजे बीर साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं एक वक्फा लेता हूं और सबसे पहले उन्हीं से शुरू करूंगा। सवाल करने से पहले उनसे पूछूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद सब लोगों से एक ही सवाल होगा कि ये तो होना चाहिए, हो क्या रहा है, पाकिस्तान जा किधर रहा है, उसका मुझे जवाब चाहिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होता हूं।
जी नाज़रीन साहब, से पता है आपको कि ये मुख्तसर वक्त होता है, तो पहले सबसे पहले मैं पीजे मीर साहब से पूछना चाहता हूँ, पहले तो आप जो बात कहना चाहते हैं वो अपनी बात कह लीजिए, फिर मुझे बताइए कि ख्वाहिशें अपनी जगह, तज़िया अपनी जगह, हम जा किधर रहे हैं। इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आज ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि अली आज आए प्रोग्राम में। जब हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो एक आदमी जहांगीर बदर, इनके वालिद, वो हमारे हम असर और दोस्त थे, भाई थे, मेरी तो फैमिली के साथ ही थे वो। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि वो आदमी ने क्या क्या लाशें नहीं खाई, हर चीज नहीं किया, लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा। 9 मई को जिन लोगों ने की है उनको पकड़ो, लेकिन ये बाकी किधर दौड़ गए? ये क्या सियासतदान है कि पार्टी मुसीबत आती है भाग जाते हो? यही चीजें मैंने नून में अच्छी चीज देखी है, पीपुल्स पार्टी में चीजें देखी है। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है अभी? आपको होता क्या दिखाई देता है? इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? वक्त चूंकि कम है, इतनी तेजी से सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक अब आपके पास पॉलिटिशियंस हैं, ये आपको इफ्तिखार बता देंगे कि जब ये इलेक्ट होने से पहले सबके साथ यारियां, जब ये इलेक्ट हो गए उसके बाद इनकी आप इनको देखेंगे नहीं, प्रोग्रामों को बुलाएंगे, मीर साहब आपके साथ भी होगा, ये आते नहीं है प्रोग्रामों के अंदर। आपको तजुर्बा हमसे ज्यादा इस मामले में। जी नज़ीर लगारी साहब क्या कहेंगे आप? जो हो जी नज़ीर लगारी साहब। और जी मैंने अर्ज किया है कि जो कुछ हो रहा है मैं उसे बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, और अब तक जो कुछ होता रहा है वो भी ठीक नहीं था। हमें बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, और जो आज इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि इफ्तिखार अहमद साहब ने जो कहा है कि हम ग्रास रूट लेवल पर चले जाएं और हम उस तरफ जाकर लोगों को एम्पावर करें, ताकि कम से कम ये तो तय हो जाए कि हमने इस सतह से आगे बढ़ना है और आगे चले जाना है। और जो हो रहा है वो मैं समझता हूं कि वो इतना अच्छा नहीं है कि जिस पर हम खुश हो सके। ठीक बात है जी। इफ्तिखार साहब, अब आपकी तरफ आते हैं कि वो ग्राउंड रूट पर चले जाएं, लेकिन हो क्या रहा है? जा किधर रहे हैं हम? क्या नजर आता है आपको? मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम अदालती मार्शला की तरफ गामजन हैं, और वही इस वक्त मुल्क में चल रहा है। तो कोई आपको उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती? उम्मीद की किरण से फिर वहीं पे जाएगी कि ये जो हमारे होते हैं कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट के अरकान, अब इनको नहीं सिर्फ इक़्तिदार देना, इक़्तिदार अवाम को दे दो, लाखों लोगों को इक़्तिदार दे दो, और फिर देखो होता क्या है। फिर मैं देखता हूँ कौन अदालती मार्शला का सोच भी सकता है। यार इवन मार्शला के भी सोचने वालों को 10 दफा सोचना पड़ेगा कि यार ये जो लाखों ऑर्गेनाइज वर्कर हैं, लोग हैं 3-4 बड़ी सियासी पार्टियों के, इनसे कौन निपटेगा? ठीक बात। ठीक जी। अली आप क्या कहेंगे? जी अली बदर साहब आप क्या कहेंगे? सर, हम सबको इस मुल्क के बारे में सोचना है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, सिविल सोसाइटी हो, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो या आवाम हो, क्योंकि ये मुल्क है तो हम है, और इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, और तमाम स्टेक होल्डर्स को जो जिसका राइट बनता है, जिसका हक बनता है वो दे दिया जाए, ताकि इस मुल्क में एक जेन्युइन डेमोक्रेसी आए, और आपस में बैठ के पार्लियामेंट के अंदर ही जो लड़ाई झगड़ा करना कर लें। लेकिन यहाँ पे 1988 से लेके 1990 में आप असगर खान केस पढ़ लें, फिर 93, 97, 2002, 2008, 13, 18 कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर अब कहीं पे कोई खुश हो, लेकिन निजाम आगे चला। यानी फेर इंतखाबात, आपका ख्याल है कि फेर इंतखाबी मसले का हल है, और ये भी कहा जा रहा है कि पावर को निचले लेवल मुंतकिल किया जाए, और ये भी सोचा जा रहा है कि ऐसी सूरत होगी कोई अदालती मार्शला जहाँ ओरिजिनल मार्शला मुश्किल से आएगा। ये भी सोचा जा रहा है कि कोई आदमी इसकी निगरानी करे, कोई अदारा निगरानी करे, लेकिन वो कहाँ से आए, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरी तारीख का हमने तज़किया किया है। खुलासा ये है कि हम तारीख के उस मोड़ पर हैं जिसे बिन हैसुल कौम हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हमसे मुराद हमारे तमाम अदारे, हमारे तमाम स्टेक होल्डर हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, मुल्क के लिए मुश्किलात हैं, और इंशाअल्लाह इन मुश्किलात से हम निकलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।